All right, so this is the paper which is a reference to most of the large language models, especially ChatGPT, which proves to be a breakthrough in generative AI. Attention is all you need. Yesterday, we had a session. In fact, in that session, I explained the entire attention mechanism with practical, including the diagrammatic representation. I referred to this paper. Okay, so in this paper, it has been mentioned that the previous models for text processing were not sufficient enough to perform the task in regards to sequence length, in regards to parallel processing, in regards to capture the dependencies, context dependencies in the data. They do have computational complexity. They don't have any mechanism to easily assign the relationship between the words, between the terms. They are non-parallel. LSTM by LSTM, they do work on short-term, long-term dependencies. If any new information added, they are not capable enough, important information. They're not capable enough. They may reject such information also. These are now all mathematical perspective. They have been proved mathematically that traditional models like RNN, LSTM, BiLSTM, they are not capable. So the authors in this research paper they proposed transformer architecture where they include attention mechanism. Okay, in this paper, if you study from the starting, they have mentioned all the shortcomings of recurrent network. Okay, so that's the inspiration for them to prepare a new architecture in 2017, which gave a path for building LLMs like ChatGPT. Attention was also not new. Okay, that particular logic, na, that's also been previously. You know that in attention, that's what it means to give a focus on certain terms. That's what attention means. Here, self attention, it is also called as intra attention. Okay, relating different positions of a single sequence in order to compute a representation of a sequence. Here is the definition of self attention. It is called as intra attention. Ultimately, I want to give a focus. I need to attend the words. I need to identify the relationship. I need to check whether this word in a sequence is important or not. I did not want to engage in hard maths like, okay, short term dependency, long term dependency. In fact, I need to simplify the task.
I want parallel processing. I want to attend each and every word, how it is related to other words. Okay, so because of that, the transformer came into picture. And in transformer, the architecture says that you very well know encoder decoder. You give input in the form of x1, comma x2, comma x3 up to xn into the encoder that create a encoder representation like z1, z2, z3 up to zn. Then these encoder representations are given to the decoder to produce another sequence to generate the symbols one at a time. Okay, that is y1, y2 up to ym. Okay, now uh, in encoder we do have six layers. I'm sharing my screen. What it is trying to say, the entire screen. Okay, so this is your GPT architecture also. I will complete by this paper and GPT also. So it is saying according to the architecture of transformer, what they proposed, they told we have encoder that is obviously neural network. This encoder is having six layers. In BERT, we have studied na 12 layer encoder. It is having all encoders only, no decoder. And the tasks which are done by the BERT, you know, next sentence prediction, word, mask word prediction. So these are the tasks which are mentioned for the BERT. We have seen also the cousins of BERT, advanced BERTs, mini BERT, something like that, L BERT, distill BERT. In the previous lecture, I told. So in transformer, they said we are having six layer in encoder. Okay. Then they said each layer is having two sublayer. Okay. So each layer is having two sublayer. One sublayer, one sublayer is multi-head attention. Second sublayer is feed forward network. Okay. So if we are having six layers, something like that, if we can make encoder one, two, three, four, five, and this one is six. This is encoder, stacked one above the other. Layer one, two, three, four, five, six. It is saying that every layer is having sublayer. Okay, so I can have multi head attention and feed forward network. This is same for all. Okay, now what's there? Multi head perform attention mechanism and feed forward performs simple position wise your normalization, this kind of operation you have already seen in the transformer architecture. This is now well known to you. Okay, fine. And the input and output is of the dimension 512. We are also having residual connection, you very well know. You can see this is a residual connection. This is a residual connection. The idea of residual connection is I don't want to make the things end. That means
It should not be vanishing gradient. So we are tapping these ahead and then we are adding and performing normalization. So this is multi-head and feed forward. I am having six such layers in which multi-head and feed forward is performed. Okay, fine. And the residual connection, all sublayers in the model as well as the embedding layer, they produce output of dimension 512. Okay, so that's what I'm getting. D model 512. Okay, dimension is 512. So you can, that's what this said, D model equal to 512. So that could be like, okay, if I just count the number of elements, that will be 512. Okay, this is about encoder. You know now what happens. Okay, and in the yesterday's class, I practically explained multi-head attention also. You are having self-attention, how you take a text, how you convert it into token, then how you perform the embedding, what is the dimension of embedding, what you keep, and then how you make Q, K, V, how to assign WQ, WK, WV, what is the length of these, what is for these metrics, everything I explained. So I gave an explanation about self attention, and then I explained about multi head. That means if you understand self attention, then only the thing is you require the same operation in a multiple way. That means, for example, I gave a variable h like h equal to 3 in yesterday's class. So we are having self attention 1, self attention 2, self attention 3. Okay, so we are actually projecting QKV over the number of attentions, okay, which work parallelly. Fine. In decoder also have, that's what they explained. Decoder is also having six layer. Okay, six layers. Identical as like, okay, encoder na, decoder is also having the six layer. Fine. So let me write it here. Decoder, six layer. But the task of decoder, what we have seen in general, they gave the transformer architecture for translation. Okay, they have given this architecture for translation. We are using it for text generation also. All right, fine. For text generation also. तो यहाँ उन्होंने कहा कि सिक्स लेयर्स हैं जस्ट लाइक एनकोडर. फिर उन्होंने कहा कि थ्री सब लेयर. एनकोडर में यू आर हैविंग टू सब लेयर, हियर दे आर सेइंग थ्री सब लेयर. आप भी जानते हैं क्यों होगा ऐसा. द पॉइंट इज, हियर दे आर हैविंग टू मल्टी हेड अटेंशन एंड वन फीड फॉरवर्ड नेटवर्क. ये है उनके पास जो टू मल्टी हेड हैं, जिसमें एक तो मल्टी हेड है ही, मल्टी हेड अटेंशन है. एक यू यू वेरी वेल नो, वो आपका मास्क मल्टी हेड अटेंशन है. सो दे आर हैविंग टू मल्टी हेड अटेंशन, ऐसा बोला उन्होंने. आप पेपर में देखेंगे वो क्लियर कर रहा है. सो हियर वी आर हैविंग टू सब लेयर. द डिकोडर इंसर्ट थर्ड सब लेयर ऑल्सो. ठीक है, तो अब टोटल थ्री हो गया.
which perform multi-head attention over the outputs of the encoder stack similar to the encoder, which employ residual connections around the sublayer followed by layer normalization. We modified self-attention in the decoder stack in previous position from attending the subsequent position. मास्किंग, अब ये जो अंग्रेजी बोल रहा है ना इतनी, भाई अभी सिर्फ इतना पढ़ के आप मुझे नहीं लगता कि बना लोगे ये, अब बना पा रहे हो क्योंकि कॉन्सेप्ट में पेपर को बाद में दिखाया, सबसे आखिरी में दिखा रहा हूँ। आई एम शोइंग यू द पेपर एट द लास्ट, कॉन्सेप्ट सारे पढ़ा दिया आपको। इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू रीड दीज लाइन्स की दिस मास्किंग, अब यू विल से दैट सर मास्किंग कहाँ से आ गई, ये क्या होता है, ये कैसे दिखती है, तो आप अभी समझ ही नहीं पाते थी, पेपर पहले दिखाता हूँ। अब आप जानते हो, नाउ यू आर इन अ पोजिशन की मास्किंग कहाँ और कैसे आई है। यू वेरी वेल नो कि वी डू हैव अटेंशन एंड वी हैव वन मोर मैट्रिक्स, जिसमें आपको याद होगा हमने इन्फिनिटी वगैरह लिया था। ठीक है, ये करने के बाद इट कन्वर्टेड इनटू जो आपके वर्ड्स हैं, मतलब जो वैल्यूज हैं, टेंशन स्कोर्स हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू इन्फिनिटी एंड देन वी हैव गिवन दिस रिजल्ट इनटू शॉर्ट मैक्स एंड देन फिर आपको वो जीरो हो गया था, दोस टर्मिनोलॉजीज बिकम जीरो। I hope if you remember, we are having attention score, all these are 0. We are having attention score, these two are 0. We are having attention score, this is 0. And all the attention scores are mentioned. And you very well know that why we are performing masking, क्योंकि हम cheating नहीं करने देना चाहते उससे. Okay, because the thing is, when you ask it for the translation, you very well know, you gave English as an input. उसको पता है कि क्या बनना चाहिए इसका, इतना तो पढ़ा लिखा है यार वो। ठीक है, इफ यू वांट टू ट्रांसलेट इट इनटू फ्रेंच, इट नोस कि फ्रेंच के कौन से वर्ड्स होगा, लेकिन अभी उसको वी आर नॉट गोइंग टू टेल प्रायर कि ये बनाना है तेरे को, नहीं। ओके, उसने यहाँ पर बोला कि ठीक है, ये दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम मास मल्टी हेड, एंड आफ्टर गेटिंग दैट यू हैव टू अगेन मेक क्यू के वी, ये बनाना है आपको, क्यू के वी। यू कैन सी दी आर्किटेक्चर हियर, क्यू के वी, ये देखो ये गया ना, ये पहले यहाँ से क्यू के वी मास होके गया एंड देन ऐड नॉर्मलाइजेशन वगैरह जो भी कुछ करना है करेंगे, ये तो एवरी टाइम दिस इज प्रेजेंट, नॉर्मेशन करके एंड देन वट एवर बी द इनपुट आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम द एनकोडर एंड वट एवर बाई द आउटपुट फ्रॉम दिस, ये दोनों मिला देंगे, अब वो मल्टी हेड के अंदर दिया जाएगा। ओके, इस वाले में दिया जाएगा मिलाकर, अगेन वही क्यू के वी ही बनना है। Okay, and फिर again add and normalization, then feed forward, then add and normalization. So we have to normalize our data, we have to add the previous results also, so that there should not be no vanishing gradient. ये सब करते रहेंगे अपन, ठीक है। एंड पूरा फिनोमिना बड़ा ज़बरदस्त फिनोमिना है। ओके फाइन, और जितना इसको आप टाइम दें समझने के लिए, मतलब मुझे कभी लगता है उतना ही कम है। Yesterday also it went about more than 2.5 hours to just explain attention only. पूरा आर्किटेक्चर तो मुझे 10 घंटे लगते हैं, आपको पता है। It took 10 hours for me to explain the entire architecture. Yesterday only 2.5 hours more, मतलब वो भी है सिर्फ अटेंशन ही बताने के लिए, वो भी मैं सिर्फ इतना बता पाया, बस इतना ही बताया मैंने, बिकॉज द थीम ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज ओनली अटेंशन मैकेनिज्म, हाउ टू प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट इट, तो मैं एनकोडर का अटेंशन ही बता पाया बस। ओके, खैर एनीवेज, तो भाई ऐसा है, यहाँ डिकोडर में उन्होंने अपनी बात क्लियर कर दी। अब अटेंशन के बारे में, सी अटेंशन उस समय पर 2017 में व्हाट दे टोल्ड अस, वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ अटेंशन, दे डिड मेंशन इन द पेपर, बोला उन्होंने, एक होता है एडिशन एंड द सेकेंड वन इज योर स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट। ये उस समय की बात है, यदि आप कोई लेटेस्ट रिसर्च पेपर इफ यू डाउनलोड ना, अब तो बहुत सारे आ गए, बहुत सारे आ गए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में भी दे डिड अ लॉट ऑफ चेंजेस, आई एम अवेलेबल विद द पेपर है।
तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, रिसर्च पर्सपेक्टिव है, काफ़ी बातें हैं नई हो चुकी हैं। ये अभी 2017 के हिसाब से बता रहा हूँ। दे आर हैविंग एडिशन एंड स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट। अब एडिशन जो था उसके ड्रॉबैक ये था कि ये इट्स लाइक स्लो, एंड डॉट प्रोडक्ट वो था फास्ट। सो दे इम्प्लीमेंटेड डॉट प्रोडक्ट, है ना, दैट इज क्यू डॉट के का ट्रांसपोज। दैट्स व्हाट दे हैव इम्प्लीमेंटेड इन अटेंशन। ठीक है, और मेंशन करिए ये बात उन्होंने यहाँ कि आप जो बनाते हो ना क्यू के वी, ओके, तो वी आर हैविंग द डायमेंशन ऑफ क्यू एस डी के, इसका भी डी के, इसका डी वी, ऐसे डायमेंशन होते हैं। क्वेरी और की का दे टुक सेम एंड ये डायमेंशन डी वी अलग लिया। फाइन, ये मेंशन करा पेपर के अंदर। एंड देन फिर व्हाट दे टोल्ड, दे आर सेइंग कि वी कंप्यूट द डॉट प्रोडक्ट। फिर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं क्यू और के का, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फिर स्केलिंग करते हैं। आपको ये सब पता है, ये पूरा जो पढ़ा चुका हूँ यहाँ पर मेंशन है पेपर में। ओके, so the step number one what you studied is q k का ट्रांसपोज, then you perform q k का ट्रांसपोज का स्क्वायर रूट ऑफ डी के, यानी यहाँ पर आपने you perform scaling, and then फिर आपने क्या करा है, the next one is you applied softmax। ओके, क्यू के का ट्रांसपोज अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डी के, ये आपने बताया, you applied softmax here। ओके, एंड देन जो भी रिजल्ट आया यहाँ पर you did multiplied, you perform the dot product, that is softmax, the one which you get from above, q k का transpose upon square root of dk dot v। ये आपने करा, ये आपका सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म है ना। यू वेरी वेल नो अबाउट दीज थिंग्स, इतना है। ठीक, सो ये पूरी बातें उन्होंने रख दी यहाँ। और फिर नीचे कंक्लूडरी कुछ रिमार्क है, वाइल द स्मॉल वैल्यू ऑफ डीके द टू मैकेनिज्म परफॉर्म सिमिलर, दैट मीन्स एडिटिव अटेंशन एंड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन बोथ आर सेम व्हेन द वैल्यू ऑफ डीके इज स्मॉल। तो दोनों एक ही जैसे काम करते हैं, दोनों अटेंशन एक जैसे काम करते हैं। आइदर यू कैन टेक स्केल्ड, आइदर यू कैन टेक एडिटिव अटेंशन। ठीक है, एडिटिव अटेंशन आउट परफॉर्म्स द डॉट प्रोडक्ट अटेंशन विदाउट स्केलिंग फॉर लार्जर लेयर्स ऑफ डीके। ठीक है, ये भी उन्होंने कहा कि जो एडिटिव अटेंशन है वो स्केल्ड से अच्छा होगा फॉर विदाउट स्केलिंग फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ डीके। यदि आप स्केल नहीं करोगे तो डीके की इफ द डायमेंशन इज मोर विदाउट स्केलिंग, अटेंशन मैकेनिज्म में एडिटिव वाला वो आउट परफॉर्म कर जाएगा डॉट प्रोडक्ट वाले को। ओके, वी सस्पेक्ट दैट, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, हमें डाउट है, हमें गड़बड़, हमें लग रहा है कि भाई आएगी तो लार्जर वैल्यू डी के, जो डायमेंशन है डी के, वी सस्पेक्ट फॉर द लार्ज वैल्यू। उनको ये शक था, शंका थी उन्हें कि जो ये डायमेंशन है इसकी वैल्यू तो बड़ी आएगी। तो एक काम करते हैं, हम एडिशन वाला अटेंशन नहीं लगाते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट वाला ही लगाएंगे। तो इन्होंने एक काम करा, इन्होंने डॉट प्रोडक्ट लगाया और जानबूझ के इन्होंने उसको स्केलिंग करके शॉर्ट मैक्स में देके 0 से 1 में कन्वर्ट करके ये खेल करें, ये करा उन्होंने। और ये उनकी जो शंका ऐसे ही नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट कि कुछ मतलब उनको लगा हो। ठीक है, सो उन्होंने पूरा कैलकुलेशंस दे डिड परफॉर्म एंड अकॉर्डिंगली ना उनको जो है यहाँ पर अपने result में that they got it and that is what they have used, and I have seen such kind of phenomena in other also। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने सेल्फ अटेंशन खत्म करा। फिर उन्होंने बोला कि भाई एक सेल्फ अटेंशन से कुछ नहीं होता। दे सेड इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग अ सिंगल अटेंशन with the demodeled dimension key value and query, we found it beneficial to linearly project them h times, यानी उस चीज को h टाइम करो आप। यही तो कल मैंने अपने सेशन में बताया, क्योंकि ये पूरा ही अटेंशन वाला पेपर है ये, तो अल्टीमेटली कल यही पेपर पूरा समझा के प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर दिया। इन यस्टरडे सेशंस यही हुआ।
ठीक है, सो आप प्रोजेक्ट करिए डीके डीके डीवी यानी डायमेंशन ऑफ क्यू, डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन ऑफ वी, यू हैव टू प्रोजेक्ट एच टाइम्स। मतलब एच आप जो है वो अटेंशंस ले लीजिए, दैट इज कॉल्ड एस मल्टी हेड। ठीक है, ये आप ले लीजिए। तो मल्टी हेड अटेंशन अलाउज द मॉडल टू जॉइंटली अटेंड द इंफॉर्मेशन, जॉइंटली एक साथ सब अटेंड करेंगे। Okay, that's what they are going to do. From different representations of spaces at different position. अब ये आपके पल्ले तब पड़े जब आप कल की क्लास में हो तो आपको वो डायग्राम दिखाऊं। ठीक है, द वंस हु आर प्रेजेंट उनको ये दिखेगा, पता है ये। ठीक है, तो बात इतनी है, उसने कहा कि मल्टी क्यों, वाई यू आर टेकिंग मल्टी हेड अटेंशन, क्योंकि हेड हो गया सेल्फ अटेंशन। ओके, एंड आई वांट टू फाइंड the relationship of a word x with other words, ये मुझे पता करना है ना। ठीक है, ये मुझे पता करना है कि ये हाउ इट इज रिलेटेड टू अदर वर्ड्स। ठीक है, ये जो भी आ रहा है लिखा, ठीक है, समझे। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल्फ अटेंशन पर हुआ, ऐसे वन पर हुआ। अब वो अगले सेल्फ अटेंशन पे SA2 पर इसका रिलेशन दूसरे वर्ड्स के साथ यू कैन आई कैन काउंट। फिर अगले वाले पर इस वर्ड का विद रेस्ट ऑफ द वर्ड्स उससे काउंट, जो तभी कर रहा है पैरेलल। ठीक है, तभी वो पैरेलल कर रहा है SA1, SA2, SA3। फॉर एग्जांपल इफ आई टुक H इक्वल टू 3, तीन सेल्फ अटेंशन लिए हैं हमने। ओके, और फिर बाद में क्या करेगा मालूम है, रिजल्ट को कॉन्कैटिनेट कर देगा। इट विल परफॉर्म द कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेट ये करेगा रिजल्ट को। ठीक है, अब ये तो खैर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल देखना चाहिए था आपको। ओके, खैर तो with a single head averaging inverts this, with a single attention head averaging inverts this thing, ये मल्टी हेड के साथ ये होता है। सिंगल देखो, ये बोल रहा ना, मैंने कहा ना कॉन्कैटिनेट कर देगा सबको। तो ये मल्टी हेड है, क्यू के वी कॉन्कैटिनेशन ऑफ हेड 1, हेड 2, हेड 3 अप टू ये कर देगा। एंड ये है आपका एवरी हेड इज हैविंग दिस अटेंशन। ऐसा मत समझ लेना भाई किसी क्यू के और वी, उसके पहले भी बहुत कुछ होता है, ये कल बताया। वेट भी आते हैं, ठीक है, वेट भी कंसिडर करे जाते हैं। डब्ल्यू वाला फंडा गया नहीं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग अ सेंटेंस, माई नेम इज निर्मल, यू वेरी वेल नो कि सर इसका सबसे पहले टोकनाइजेशन करते हैं। ओके, टोकन्स, एंड देन सर फिर वी डू परफॉर्म द एम्बेडिंग ऑफ दिस वर्ड्स, इनकी एम्बेडिंग होगी। ठीक है, तो जैसे ये माय है, ये मेरा टोकन है, इसकी एम्बेडिंग मेरे पास है, ये आपको देना। इससे आप करोगे क्यू के और वी, इस टोकन से आप ये करोगे। उसके पहले भाई डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू के, डब्ल्यू वी ये रहेंगे, वेट रहेंगे। तो ये जो माय है इसकी जो एम्बेडिंग है, ओके लेट अस सपोज 616 की बनाई थी कल हमने, वी वर हैविंग 6 वर्ड्स इन आवर टेक्स्ट। ओके, एंड 16 इज द लेंथ ऑफ द एम्बेडिंग, ये हमने लिया था, पूरा कंटिन्यूस है। ठीक है, और डब्ल्यू क्यू जो बनाया था वो हमने बनाया था, ओके क्योंकि क्यू हमने लिया था 24, के हमने लिया था 24 लेंथ, वी हमने लिया था 28 लेंथ का। सो डब्ल्यू क्यू वर ये बना था 2416 का, ये मैट्रिक्स है। ओके, ये दिस इज अ मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी था 2416 का और ये है 2816 का। ठीक है, ये मैट्रिक्स बनी है इतनी बड़ी, और ये इसके साथ ऑपरेट होगा, वो लिखा है ना यहाँ पर। ठीक है, ये देखो दे डिड मेंशन समथिंग हियर, ये लिखा क्यू डब्ल्यू क्यू, ऐसा लिखा उन्होंने कुछ। ओके, तो ये डब्ल्यू क्यू वो जो मैट्रिक्स है वो कहाँ से, ये भी रैंडमली बनी है। ये भाई ये भी रैंडम मैट्रिक्स बनेगी, रैंडम।
ये सब रैंडम बनेगी, ये भी रैंडम है। ओके, विद द हेल्प ऑफ रैंडम। ओके, और भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्यू बनाते हैं, इसी को इससे मल्टीप्लाई करके ये बनाया के, और इसी को इससे मल्टीप्लाई करके फिर वी बनाया। तो क्यू के वी आया, और उसके बाद फिर वो चमत्कार करना सेल्फ अटेंशन वाला। आफ्टर दैट यू हैव टू परफॉर्म द सेल्फ अटेंशन। ओके, तो ये सिंगल सेल्फ अटेंशन में था। ये डायग्राम है मेरे कल प्रोजेक्ट में, कोडिंग में। ओके, तो कह रहा है कि भाई कॉन्कैटिनेट ऑल दीज थिंग्स एंड दिस इज अटेंशन फॉर अ सिंगल हेड। यू आर अवेलेबल विद ऑल द हेड्स मल्टीप्लाई बाय द वेट ऑफ आउटपुट फ्रॉम द मल्टी हेड। ओके, एंड दीज आर द प्रोजेक्शन डायमेंशंस वो दे रहा है। ये एक कोई रियल नंबर है, डी मॉडल इंटू डी के। डी मॉडल इज 512, यू वेरी वेल नो। डी के इज द डायमेंशन ऑफ की, दिस इज ऑल्सो 512 डायमेंशन ऑफ की, दिस इज ऑल्सो 512 डायमेंशन ऑफ वी। तो ये डब्ल्यू क्यू है, ये बता रहा है वो वेट की मैट्रिक्स क्या आएगी, इतनी आएगी। और डब्ल्यू ओ ये होगा आर एच डी वी इंटू डी मॉडल, ये होगा, ये डायमेंशन होंगे। गॉट इट? फाइन। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, जो मैंने पढ़ा था वो ये है कि जो इंटरनल लेयर्स हैं वो 512 का इनपुट गया, ये 1024 में कन्वर्ट होके फिर 512 में वापस हो जाता है। दिस इज व्हाट हैपेंस। ओके, ये हियर ड्यू टू रिड्यूस डायमेंशन ऑफ ईच हेड द टोटल कंप्यूटेशनल कॉस्ट इज सिमिलर एंड द सिंगल हेड अटेंशन इज फुली डैमेज। अब यहाँ कुछ ऐसा लिखा है उन्होंने, ठीक है, पूरी बात क्लियर नहीं, बस इतना कह रहे हैं रिड्यूस डायमेंशन ऑफ ईच हेड द टोटल कंप्यूटेशनल कॉस्ट इज सिमिलर। ओके, इज सिमिलर ऑफ अ सिंगल हेड विथ फुल डायमेंशन। ये कंप्यूटेशनल कॉस्ट तो देखनी पड़ेगी ना, कि आप कित कंप्यूटेशनल कॉस्ट मीन्स हाउ मेनी ऑपरेशंस आर बीन परफॉर्म्ड। ये जो आप मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर रहे हो ना, ये कंप्यूटेशनल कॉस्ट बताते हैं। तो ये बताना पड़ता है रिसर्च में कि आपने व्हेन यू हैव गिवन सम एल्गोरिथम, व्हेन यू हैव गिवन सम टेक्निक, सो हाउ मेनी ऑपरेशंस आर परफॉर्म, कितने मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, कितने एडिशन हो रहे हैं। आपने वो डेटा स्ट्रक्चर्स में कंप्यूटर साइंस में पढ़ा है ना ये बात। एल्गोरिथम इफ यू मेक, ये पढ़ाते हैं। तो आपसे वो होता है ना बिग ओ, ओके, एंड थीटा एंड ओमेगा, वो नंबर ऑफ स्टेप्स एन एन नंबर, ठीक है, कि कितने कंप्यूटेशंस आपके यहाँ पर हो रहे होंगे। ओके, तो उसी तरीके से उन्होंने बोला कि आप भाई मैट्रिक्स वैट्रिक्स यू आर टेकिंग, सो हाउ मेनी हो रहे हैं आपके कंप्यूटेशन। वो कह रहा है कि हम बचा रहे हैं कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है ना हमेशा कि क्या डेटा स्ट्रक्चर जो है आपका कंप्यूटर साइंस का, इज इट गुड टू स्टडी द डेटा स्ट्रक्चर फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। तो भाई ऐसा है, इसका इतना रोल है डेटा स्ट्रक्चर का फॉर अल्गोरिदम डेवलपमेंट एंड टू फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी, ये रोल प्ले करेगा डेटा स्ट्रक्चर। ओके, क्या आप बना रहे हो, कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग जो है यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, फाइन, चलिए ठीक है। फिर ये बता दिया उन्होंने मल्टी हेड, और ये अब एप्लीकेशंस भी बता रहे हैं that application of attention is in encoder decoder attention, and then encoder contains self attention. Similarly self attention is present in decoder also, but वो mask वाला भी होता है। तो इसने ये तीनों बातें क्लियर कर दी कि एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, एनकोडर डिकोडर के अंदर है, और पूरा ट्रांसफार्मर इज बेस्ड अपॉन अटेंशन मैकेनिज्म ओनली। बाकी सर हाँ, यस। सर एक छोटा सा सवाल था कि ये जो पेपर है अटेंशन इज ऑल वी नीड, तो क्या ये पेपर जीपीटी के ऊपर बेस्ड है कि ट्रांसफार्मर जीपीटी इस पर बेस्ड है। ओके ओके ये ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर उन्होंने प्रपोज करा, और चैट जीपीटी इसी पर ही बेस्ड है। वो मॉडल जो बना वो इसी को ध्यान में रख के बना, तभी तो ये फेमस हो गया।
और ट्रांसफॉर्मर्स भी इसी में ही पहली बार प्रपोज किया हाँ गया है। हाँ, देखिए क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं। ट्रांसफॉर्मर वॉज नॉट, ये अपन आप देख रहे हैं, एनकोडर डिकोडर वॉज नॉट समथिंग न्यू। आपने इमेजेस में भी पढ़ा है ना उससे, यस यस। इमेजेस में यू हैव स्टडीड, है ना। आपने सबसे पहले क्या हुआ पढ़ा था आपने मुझसे, जैन, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क। यहाँ पर यू आर हैविंग जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर, ये दो कंपोनेंट थे, पता होगा आपको। अब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है ये प्रक्रिया, ठीक है, बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। ये जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर लो और उससे ट्रेन कराओ, और सो मेनी इटरेशंस यू हैव टू टेक, ये कॉम्प्लेक्स है बहुत, इससे रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया था अपने पास। इसी के बाद इसी के टक्कर में ऑटो एनकोडर आया था, ऑटो एनकोडर। और वहीं पर ही आपने पढ़ा है ये एनकोडर और डिकोडर। यू गिव द इनपुट जो कंप्रेस होकर लेटेंट रिप्रेजेंटेशन में होता है, और वहीं से अपन डिकोडर से वापस बनाते हैं, याद आ जाए यदि आपको, यस यस। है ना, पढ़ा है ना। तो ऑटो एनकोडर आया, ऑटो एनकोडर के बाद आपने फिर वेरिएशनल ऑटो एनकोडर भी पढ़ा, उसने बोला कि हम इससे और बेटर कर देते हैं वीएई से, वीएई वेरिएशनल ऑटो एनकोडर, ये पढ़ा आपने। यहां पर आपने टू थिंग्स थी वेरिएशनल ऑटो एनकोडर के अंदर, ठीक है। वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिक एंड अनदर इज रीपैरामीटराइजेशन ट्रिक। मुझे शायद पता नहीं अब आप रिवाइज कर रहे हो या पुरानी बातें यदि याद आ जाए तो। यस यस सर, यही थे। थी ना, ये दोनों थी ना, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिक और रीपैरामीटराइजेशन, सर ठीक है। तीसरा वो अपना रिलेटिव एंट्रोपी था सर। हाँ वो, अच्छा यहाँ पर ये रीपैरामीटराइजेशन में z इक्वल टू न्यू प्लस सिग्मा एप्सिलॉन, ये याद करो, ये लिखाया था मैंने। और यस इशू ये आ रहा था कि डिफरेंशिएशन z का, क्योंकि आप ये क्या कर रहे थे, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिक का मतलब ये था कि डेटा को गॉसियन रिप्रेजेंटेशन में लेटेंट स्पेस में सेव करा था अपन ने, एंड वी आर टेकिंग, क्योंकि गॉसियन में था, कंटिन्यूस था, तो हमें फायदा ये हो गया था कि वी कैन परफॉर्म इंटरपोलेशन, ठीक है, ताकि हमें दो पॉइंट्स के बीच में न्यू मोर पॉइंट्स मिल जाएं, ठीक है, तो हम और वैरायटी का डेटा बना सकते हैं, याद है ये बोला था मैंने, यस। ठीक है। तो ये आप पढ़ चुके हैं एनकोडर डिकोडर, और ये जब ये रिजल्ट रिजल्ट अच्छा दे रहा था, बस इसी से ही अब उन्होंने ये रिसर्च पेपर में, आप ये देखें कि रिव्यू करते हैं प्रीवियस वर्क जो भी है, देखो इन्होंने मेंशन कर रखा ना, 3 to 8 दीज आर द रिसर्च पेपर्स विच दे हैव स्टडीड प्रीवियसली। तो ये एनकोडर डिकोडर अटेंशन और सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल सच एस, ये ऑलरेडी पहले यूज हो चुका है, ठीक है। मैंने बोला ना, एडिशन अटेंशन स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट, मतलब था आइडिया। कोसाइन सिमिलैरिटी क्या होता है, वो दो, ये आप यहाँ क्या कर रहे हो, दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट ही कर रहे हो ना, v1 डॉट v2 ही तो कर रहे थे, और सिमिलैरिटी निकाल रहे थे ना, तो ये भी सिमिलैरिटी तो निकाला इसने, सिमिलैरिटी स्कोर ही तो है वो। हाँ, बस बाद में इसको स्केल करा, और बाद में इसको और शॉर्ट मैक्स में दे दिया, 0 to 1 में कन्वर्ट कर दिया ताकि प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ठीक है। ये कहानी हुई है, ठीक है। तो योर दिस इज अ ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जो उन्होंने प्रपोज करा, इसको उन्होंने ट्रांसफॉर्मर बोल दिया। ये एनकोडर डिकोडर चल रहा था, लेकिन उन्होंने इसको बोल दिया ट्रांसफॉर्मर, अपना नाम दिया उन्होंने। और ये मैकेनिज्म अटेंशन दे हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस पेपर, बोल दिया कि ये है अटेंशन मैकेनिज्म कहते हैं इसे, ठीक है। तो अटेंशन लगा और फिर फीड फॉरवर्ड लग गया। फीड फॉरवर्ड लीनियर लेयर होते हैं, यानी WX+B यही होता है वो, ठीक है। यहाँ पर रेलवे एक्टिवेशन फंक्शन वगैरह ये लगा लुगू दो, ये न्यूरल नेटवर्क का ही जो जैसे होता है फीड फॉरवर्ड, वही काम होता है अंदर, और कोई बहुत बड़ा कुछ काम नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। अभी कह रहा है कि इनपुट भी 512 का आया, आउटपुट भी 512 का आएगा, बीच में 2048 हुआ हो रहा है। मैं आपसे क्या बोल गया, 1024 बोला था एक जगह, हाँ ये 2048 कर देना उसे, ठीक है, हो सकता है डबल हो जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा था, इट गेट डबल्ड इन द पेपर, दे आर सीइंग 2048। जो इंटरनल फीड फॉरवर्ड है ना, वो डायमेंशन 512 को 2048 में करके फिर वापस से द आउटपुट विच आर गेटिंग दैट इज 512, यही मिलता है हमें, ओके फाइन गॉट इट, ये चीज़ है। एम्बेडिंग इन शॉर्ट में भाई ये बता दिया, सब पता ही है। पोजिशनल एनकोडिंग ये आपको पता ही है, उसमें नया कुछ भी नहीं। आपको पता है ना, वर्ड एम्बेडिंग को में पोजिशनल एम्बेडिंग ऐड करके टिकाते हैं,
बिकॉज एनकोडर में सीक्वेंस वाली वॉज नॉट, वो एंटायर सीक्वेंस वन टाइम में वो पूरा उठाता है, ऐसा नहीं कि टुकड़े कर करके, वो पूरे उठाता है एक साथ। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट ट्रीट्स, तो उसको पोजिशनल भी, पोजिशन ऑल्सो इट टैग वो करता है। अब देखो ये है आपका डेटा स्ट्रक्चर, क्यों? क्योंकि इसने कॉम्प्लेक्सिटी मेंशन कर रखी है। सेल्फ अटेंशन पर लेयर पे बिग O ऑफ एन स्क्वायर डॉट डी, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की होती है एन इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की होती है ये कॉम्प्लेक्सिटी, सेल्फ अटेंशन की होती है आर इंटू एन इंटू डी, रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्ट ऑपरेशंस करें तो उस हिसाब से, अब ये भी अंदर भी कलाकारी है, रिस्ट्रिक्ट ऑपरेशंस कितने रखना है कितने नहीं रखना है, तो उस हिसाब से, तो सेल्फ अटेंशन की ये कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, ये पोजिशनल एम्बेडिंग्स के लिए साइन और कोसाइन की वैल्यू ली थी उन्होंने, साइन कोसाइन फंक्शंस यूज करे थे उन्होंने टू हैव द पोजिशनल एम्बेडिंग्स और द एनकोडिंग्स। ठीक है, और बाकी वाई सेल्फ अटेंशन, ये तरीका पूरा आपको क्लियर है, वाई वी आर यूजिंग द सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। द थिंग इज, ये आपने बता दिया मैंने इनिशियली कि दीज आर द इनपुट्स, दिस इज द आउटपुट ऑफ द एनकोडर, one is the total computational complexity per layer, another the amount of computation that can be parallelized, so as a measure of minimum number of sequential operations required। तो sequential operations कम होंगे, RNN के अंदर sequential operations more होते थे, तो उसकी complexity भी ज़्यादा है। ये ना रिकरेंट का बोल रहा है ना, n इंटू डी स्क्वायर बोला, कॉम्प्लेक्सिटी पर लेयर। ठीक है, सिक्वेंशियल ऑपरेशन बिग O ऑफ n, हमारे पास सिक्वेंशियल ऑपरेशन होता है बिग O ऑफ 1, यानी एक ही ऑपरेशन होता है सीक्वेंस में, यहाँ पर n ऑपरेशंस होते हैं सीक्वेंस में। ओके, क्योंकि ये पैरेलल कर दिया ना आपने, तो एक ही ऑपरेशन होगा, ओनली वन ऑपरेशन इज देयर, और मैक्सिमम पाथ लेंथ इज बिग O ऑफ 1, यहाँ बिग O ऑफ n होते हैं पाथ लेंथ, सीक्वेंस देना पड़ेगा आपको एक एक, उस हिसाब से हम एक ही बार में इनपुट फेंक देते हैं यहाँ, ये ले बेटा पूरे सीक्वेंस तो एक बार में ले, n टाइम्स नहीं देते अपन। ठीक है, तो ये इसलिए कंपेयर करा इसने पेपर में, अगर अपने रिजल्ट्स बताएं। ठीक है, ये बातें लिखी हुई हैं इस पेपर के अंदर। बाकी अब फिर इनका, इन्होंने ट्रेनिंग करा है, अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेटअप करके उन्होंने जो है ये अपने रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए, दैट्स इट। तो खास समझाने वाली बात वही थी जो मैंने बता दी, कंक्लूजन लिखा आपका 9 पेज पे तो बात ही खत्म कर दी, बाकी तो फिर रेफरेंसेस है, टिल 9 पेजेस द पेपर इज ओवर। ठीक है, बस इतना ही था, अटेंशन इज ऑल यू नीड। ओके, गॉट इट, फाइन। मुझे आज ये पेपर बताना था क्योंकि आई डू हैव दिस जीपीटी जीपीटी का जो है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ और जीपीटी मॉडल्स, तो जीपीटी के बारे में आई विल टॉक समथिंग। अब आपको पता ही है, इसमें आप मुझे बताना बचा है ही नहीं। आई टॉक समथिंग अबाउट द जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन, एंड दैट्स इट। आई विल पुश टू some concepts related to RAG, something related to the LangChain। ओके, ठीक है, और आपको प्रोजेक्ट में फाइन ट्यूनिंग का करवाऊंगा LLM का। ठीक है, ऑलराइट, ये बहुत ज़रूरी था बताना। ऑलराइट, लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग, लेट मी स्टॉप